Hello everyone, welcome back to our channel. This is Madhuri Taneja, and in today's lecture we will continue lesson number 8 of history, that is the devotional path. In the previous lecture we discussed about the idea of the supreme god, we discussed about the bhakti movement, and we discussed about the alvas and the nayanas, that is we discussed about how the bhakti movement got prevalent in South India. Today we will cover some another topics from the same chapter. So the first one is philosophy and bhakti. Now in the bhakti movements, so many saints were there, so many different types of teachings, different ideologies were there. So one such saint, the very popular saint of that time, he was the earliest saint and his name was Shankaracharya. Shankaracharya was the earliest saint of the bhakti movement. He was known as Shankara or Adi Shankaracharya of Kerala. He was an advocate of Advait Vedanta. Means वो किस वेदांत को किस रूल को मानते थे? अद्वैता. Now what does this means? Advaita means the principle of non-duality. Non-duality means दो, non that means two नहीं है. So अद्वैता के according it was believed कि जो गॉड है, जो सुप्रीम पावर है, दैट इज ओनली वन. दिस इज व्हाट अद्वैता वेदांता मीन्स. इट मीन्स दैट देयर इज ओनली वन सुप्रीम रियलिटी एंड दैट सुप्रीम रियलिटी इज नोन एज द ब्रह्मा. आप जिसको ब्रह्मा जी बोलते हो, यू माइट हैव सीन इन डिफरेंट टीवी सीरियल्स ऑल्सो. सो व्हाट इज ब्रह्मा? द सिंगल सुप्रीम रियलिटी, द गॉड, जो वन सुप्रीम पावर जिस पर सब बेस्ड है, दैट सुप्रीम रियलिटी इज नोन एज ब्रह्मा. ब्रह्मन इज ओमनी प्रेजेंट एंड फॉर्मलेस. ओमनी प्रेजेंट इज वन विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टाइम, एंड फॉर्मलेस जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार, जिसका कोई फॉर्म नहीं है. सो बेसिकली शंकराचार्य और आदि शंकराचार्य ही बिलीव्ड in the principle of non-duality, or you can say Advaita Vedanta. According to this principle, there is only one supreme reality and that is known as Brahma, which is omnipresent and formless. According to Shankara or Adi Shankaracharya, the world is an illusion. Illusion means world आपका भ्रम है, means आपकी अपनी imagination है. अगर आप हर चीज़ का त्याग कर दो, अगर आप ये सब छोड़ दो, तो आपको कोई भी पेन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो एवरीथिंग विल बी एट पीस. सो द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन. इफ यू वॉन्ट टू अटेन सैल्वेशन, देन यू हैव टू रिनाउंस द वर्ल्ड. वी कैन अटेन द सैल्वेशन ओनली बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड. रिनाउंस करना मीन्स छोड़ देना, मीन्स आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो. सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने हर लाइवली जो वर्ल्डली चीज़ें हैं, जो वर्ल्ड में आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी चीज़ का इंटरेस्ट दे रही हैं, आपने उन सबको छोड़ देना है. यू हैव टू रिनाउंस द होल वर्ल्ड. कोई भी रिलेशन है, कुछ भी है, यू हैव टू लीव दैट. मीन्स आपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना है. यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड डिफरेंट मटीरियलिस्टिक things. This was the principle of Advaita, and these were the teachings given by the Shankaracharya of Kerala. He was the one of the earliest bhakti saint, and according to him, there is only one supreme reality which is known as Brahman, which is omnipresent and formless. According to him, the world is an illusion and you have to renounce the world. आपको इस illusion से बाहर आना है. Ramanuja advocated the doctrine of विशिष्ट अद्वैता. अब रामानुजा भी एक सेंट थे उस टाइम के, उनका अपना डॉक्ट्राइन था. डॉक्ट्राइन मीन्स उनकी जो पॉलिसी थी, जो उनका रूल था, टीचिंग थी, दैट वाज डिफरेंट. ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स एंड वाज अ फॉलोअर ऑफ विष्णु. रामानुजा सेंट वाज द फॉलोअर ऑफ विष्णु एंड दैट इज व्हाई ही वाज नोन एज द अलवर. ही इंस्पायर्ड द फॉलोअर्स ऑफ भक्ति इन नॉर्थ इंडिया. As in the previous lecture we studied about the bhakti movement in South India, this is about the bhakti movement in North India. So in the north side of the India, the bhakti movement gained popularity, or you can say gained momentum, due to Ramanuja. Baswana's Virashaivism began in the mid 12th century in Karnataka. They were opposed to the caste system and its hierarchical structure and the treatment of women. This we have already discussed, that at that time
before the Bhakti movement, before the Sufi movement, before these movements, there was division of the caste on the basis of the religion, on the basis of gender. So some people were there during those times who opposed to this caste system, and then it was the time when the Bhakti movement got momentum in our country, in the north as well as South India. Next, we will study about the Maharashtra. Regional traditions of Bhakti developed in Maharashtra also, where the focus was on Vitthal. Vitthal means a form of Vishnu. So basically, Maharashtra में भी Alvas were there. The followers of this form of the Bhakti were humanist in their approach. अब जो महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट फेमस हुई उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था. यहाँ के जो फॉलोअर्स थे दे वर ह्यूमनिस्टिक इन देयर अप्रोच. अकॉर्डिंग टू देम रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम एंड रेनंसिएशन शुड नॉट बी देयर. अब ये ह्यूमनिस्ट थे, मीन्स ये ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचते थे. इनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो इलॉजिकल नहीं थी. दे सेड कि रिचुअलिज्म नहीं होना चाहिए, सो दे रिजेक्टेड द रिचुअलिज्म, जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं. अगेन दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम ऑल्सो, एंड व्हेन दिस दे रिजेक्टेड रिनंसिएशन. रिनंसिएशन मीन्स कि जो भी वर्ल्डली प्लेजर है यू हैव टू लीव दैट प्लेजर. एंड इन सेंट्स के अकॉर्डिंग, जो सेंट्स आपके महाराष्ट्र में फेमस थे, इनके अकॉर्डिंग टू दीज फॉलोअर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, रिनंसिएशन शुड नॉट बी देयर. मीन्स आपने वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ना नहीं है. वर्ल्डली प्लेजर्स मीन्स कि आपको अपने रिलेशनशिप्स, अपने फैमिली, किसी से कोई मतलब नहीं है. बट दीज पीपल दे सेड कि ओके, भक्ति मूवमेंट कहती है डिवोशन होना चाहिए, गॉड वन है, दैट इज ओके, बट दिस डजंट मीन कि आप अपने वर्ल्ड को रिनंसिएट कर दो. आप रिनंसिएशन यानी कि आप वर्ल्ड छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ दिस दे बिलीव्ड इन लिविंग विद देयर फैमिलीज एंड शेयरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. दे सेड कि आपने क्या करना है, गॉड में बिलीव करना है, दैट इज ओके, बट with that what you have to do is you have to live with your family and you have to share their pain, their problems and joy all together. So basically in Maharashtra the Bhakti movement gained momentum but in some different way. So basically the Bhakti movement, it got prevalent in different parts of the country in the medieval period. बट हर जगह क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेंट्स वर देयर, तो हर जगह की फिलॉसफी दूसरे पार्ट से थोड़ी सी डिफरेंट थी. नाउ द नेक्स्ट वन इज नटपंथीज, सिद्धास एंड योगीज. नाउ एज वी स्टडीड अबाउट द महाराष्ट्र वेयर द पीपल वर द फॉलोअर्स ऑफ विठल. विठल मीन्स अ टाइप ऑफ गॉड विष्णु. सो in the another topic we have Natpanthis. These were those religious groups who believed in renunciation. इनके अकॉर्डिंग रिनंसिएशन होनी चाहिए. दे बिलीव्ड कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लीव ऑल द वर्ल्डली प्लेजर्स, यू हैव टू renunciate your world. The medieval age saw the rise of many new religious groups who criticized conventional religions by using simple but logical arguments. इनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो लॉजिकल थे बट सिंपल लैंग्वेज में थे. द मेन ग्रुप्स वर द नटपंथीज, सिद्धाचार्यस एंड योगीज. डिफरेंट ग्रुप्स वर देयर. दीज ग्रुप्स बिलीव्ड इन द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. फॉर देम द पाथ ऑफ द सेल्वेशन वॉज इन द मेडिटेशन ऑफ द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी. इनके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको रेनंसिएट करना अपना वर्ल्ड, मीन्स आपको सारे वर्ल्डली प्लेजर्स छोड़ने हैं, और छोड़ने के बाद अगर आपको मुक्ति चाहिए, इफ़ यू वांट द सेल्वेशन, देन यू हैव टू डू द मेडिटेशन. किसकी मेडिटेशन? मेडिटेशन ऑफ द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी. जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो सुप्रीम गॉड है, आपने उसकी मेडिटेशन करनी है, विच इज़ फॉर्मलेस, उसका कोई आकार नहीं है. इफ़ यू वांट द सेल्वेशन, तो इनके अकॉर्डिंग आपने रेनंसिएशन करना है. फॉर दिस promoted intense training of the body and the mind through yogasan, breathing, exercise and meditation was also given. अब अगर आपको मुक्ति चाहिए, आपने मेडिटेशन करनी है, तो मेडिटेशन करने के लिए आपको एकाग्र होके, मीन्स आपका जो माइंड है वो पर्टिकुलर एक जगह में लगाना है. आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ मेडिटेशन में होना चाहिए. सो उसके लिए प्रॉपर योगासन, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन शुड बी देयर. दिस फिलॉसफी गेन पॉपुलैरिटी स्पेशली अमंग द लो कास्ट. The opposition to the conventional religion laid foundation for the spread of devotion, bhakti in the northern India. Now what happened? जो भी complicated practices थी वो rich people तो already कर रहे थे.
प्रॉब्लम कॉमन मैन को थी, बिकॉज रिच पीपल जो है वो ईजिली ब्राह्मण्स को हायर कर सकते थे, कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स कर सकते थे. सो बेसिकली दिस फिलोसफी विच सेज कि renunciation should be there and you have to do the meditation. आपको ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं करने, कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं करना. व्हाट यू हैव टू डू इज you have to do the meditation of the formless ultimate reality, and this is the reason that this movement, this particular ideology got famous among the low caste people.